Good morning to all of my friends. Welcome back to my channel Sankalp Classes. Friends, today we are going to discuss about the Egyptian religion. The question is, describe the main characteristics of ancient Egyptian religion. तो फ्रेंड्स आज हम एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन के कैरेक्टरिस्टिक को जानने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। According to Herodotus, the Egyptian people were the most religionist in the whole world. यानी जो हेरोडोटस थे एक हिस्टोरियन हैं, इन्होंने बताया कि जो ये इजिप्टियन रिलीजन है यह पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एंशियंट था। At that time, we find that there were so many superstitions, hypocrisy in this religion. यानी जो इजिप्टियन रिलीजन है यहाँ पर हमें सुपरस्टिशन, हाइपोक्रेसी की अधिकता देखने को मिलती है। देयर आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्टियन रिलीजन लाइक स्केटोलॉजी। इन स्केटोलॉजी भी इस एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। वी नो दैट देयर आर 3 किंगडम लाइक ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। सो ईच एंड एवरी किंगडम हैड इट ओन डिफरेंट टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द रिलीजियस सेक्टर। तो ये जो फ्रेंड्स इजिप्टियन रिलीजन में हमें 3 किंगडम देखने को मिलते हैं, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप है। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिलीजन, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। इट मीन्स ओल्ड रिलीजन इन ओल्ड किंगडम, रिलीजन इन मिडिल किंगडम एंड रिलीजन इन न्यू किंगडम। तो फ्रेंड्स चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ओल्ड किंगडम रिलीजन। On talking about the religion in Egyptian during the Old Kingdom, we find that the god Sun was known with many names in other area, like in the northern Egypt it was known as the Re, while in the southern Egypt it was known as Horus, and at the last we come across at a result that in Thebes the sun was known as the Amun। तो फ्रेंड्स ये जो ओल्ड किंगडम है यहाँ पर हमें एक सन को एक गॉड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, और यह डिफरेंट एक एरिया में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, नॉर्दर्न इजिप्ट में यह रे के नाम से फेमस था, और सदर्न इजिप्ट में यह होरस के नाम से फेमस हो गया। और हम आगे चल कर पाते हैं कि थीब्स एक प्लेस है इजिप्ट में, वह यहाँ पर वह आमोन के रूप में हमें दिखाई देता है। Apart from these, there were also some other important gods in ancient Egypt who had a great existence। यानी कि एंशियंट इजिप्ट के ओल्ड किंगडम में not only sun but also there are many gods which have their existence। The name of gods Amun-Re, Osiris and Isis। Isis was the goddess of Egypt। तो फ्रेंड्स not only apart from the sun there are some other gods like Amun-Re, Osiris and Isis। These are the 3 important gods in the old kingdom, and Isis it is famous that it is interesting to know that Isis was the wife of Osiris, okay, and it is also known as the mother goddess in the Egypt। देन फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि आमोन-रे दैट वाज द फेमस गॉड इन एंशियंट इजिप्टियन रिलीजन। इन द इनिशियल फेज द ओल्ड किंगडम we find that Amun-Re were considered different type name in a different sector, but later on this was merged at the same। This was national god, and he did not want to provide facility only individual but also wanted to provide all the facility to the whole Egyptian। ये जो आमोन रे नाम का गॉड था, यह नेशनल गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, एंड ही नॉट ओनली वांटेड टू
provide facility only a particular individual, but he wanted to provide all the facility to whole Egyptian people. This was the most important features of the Amun-Re, and as we have earlier discussed that in different sector it was known as different name. And after it we will talk about the another god, that is Osiris. Then let's get started. Friends, as already we have discussed that Osiris, there are some information remains about Amun-Re. Then let's then we will see first, and after it we will know about the Osiris. This is known as that his symbol was adopted in Egyptian as national emblem. He was related with the sky while the next god Osiris was related to the earth. इसका मतलब ये फ्रेंड्स नहीं कि जो इसका सिंबल था Amun-Re का, यह पूरे इजिप्टियन में नेशनल एम्बलम मीन्स नेशनल सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया गया, और यह जो गॉड है वह यानी Amun-Re यह स्काई से रिलेटेड था, जबकि जो ये ओसिरिस है यह अर्थ से रिलेटेड गॉड था। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे अब ओसिरिस और इसिस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओसिरिस वाज मेल गॉड while Isis was his wife. We find a great differences between them because there is a information about the god Osiris got to get rival after his death. फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो ओसिरिस था इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यह राइवल मतलब एक बार डेथ हो गया था, उसके बाद यह पुनः राइवल हो गया था। और यह कैसे हो गया था इसको हम आगे देखेंगे। Some people consider that it was false, while historians are also confused at this. Due to the importance of the Nile, this god Osiris became more and more famous. यानी कि एक नील नाम का गॉड था और इसके कारण यह पूरी इजिप्ट में बहुत ही फेमस हो गया। Thus we can say that love is only one thing in our society which makes everything possible apart from some exceptions. Further we find that it became famous more and more than before. इसका मतलब ये है कि जो ये ओसिरिस था जो यह अपनी वाइफ के प्रेम के कारण, अपनी वाइफ के लव के कारण यह पुनः राइवल हो गया था। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में हम जो ओल्ड किंगडम के अलग अलग फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? रिचुअल्स इन ओल्ड किंगडम। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वह है रिचुअल्स। इन द एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम वी फाइंड दैट रिचुअल्स वेर स्प्रेड ऑल ओवर द इजिप्ट। यानी रिचुअल्स जो हैं वह पूरे इजिप्ट में स्प्रेड हुए थे। एट दैट टाइम द स्कल्पचर मेड ऑफ वुड वेयर फेमस। यानी कि जो स्कल्पचर थे वह वुड से मीन्स लकड़ी से बने हुए फेमस थे। द पोस्ट वाज हेरिडिटेरी। यानी जो पोस्ट होता था गॉड का वह हेरिडिटेरी था। सो वी कैन से दैट एट दैट टाइम देयर वाज द अथॉरिटी ऑफ द पार्थियंस एंड प्रीस्ट्स इन इजिप्ट। यानी जो इजिप्ट रिलीजन था उस समय पैट्रिशियंस एंड प्रीस्ट्स का वह अथॉरिटी जो है टेम्पल्स पर एंड अदर मॉनेस्ट्रीज पर वह अथॉरिटी इस्टेब्लिश था। आगे देखते हैं कि द प्रीस्ट बिकेम गिफ्ट कंज्यूमर दैट वेर कम टू टेम्पल बाय द पीपल। यानी पीपल के द्वारा जो भी गिफ्ट वहाँ पर वो चढ़ाया जाता था उसे केवल प्रीस्ट ही कंज्यूम कर सकते थे और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इफ़ वी टॉक अबाउट द रिसेंट सिचुएशन वी कम अक्रॉस एट द रिजल्ट दैट देयर आर आल्सो रेगुलेटेड एट दिस टाइम। यानी यह जो सिस्टम है वह इजिप्टियन से लेकर आज के समय में भी रेगुलेट होती है। स्कैटोलॉजी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इजिप्ट ओल्ड किंगडम रिलीजन इज द स्कैटोलॉजी। During talking about the eschatology in Old Kingdom of ancient Egyptian, we find that the people of Egypt considered it as the word of the dead man। यानी जो eschatology था
एंशिएंट ओल्ड किंगडम में, वह वर्ड ऑफ डेड मीन, यानी जो डेड मीन थे वह उनका संसार के रूप में उनकी स्कैटोलॉजी फेमस थी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंशिएंट इजिप्टियन के पीपल का। देयर आर एन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पावर विद द नेम ऑफ ए का लिव विद ह्यूमन होल लाइफ, यानी एक पावर थी जो का नाम से फेमस थी, वह ह्यूमन के साथ पूरे लाइफ रहती थी। एंड आफ्टर द डेथ इट गोज टू दैट वर्ड विच इज कंसिडर्ड एट द वर्ड ऑफ डेड मीन, यानी यह तब दूसरे वर्ड में जाती थी जो कि डेड मीन के रूप में फेमस था। मीन्स स्कैटोलॉजी में, स्कैटोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था इनका, वहाँ पर एक वर्ड है वहाँ पर जाती थी। वी आर नॉट श्योर दैट दिस पावर लिव विद द बॉडी ऑफ ह्यूमन फॉर ए व्हाइल और नॉट, बट दिस इज श्योर दैट इट रिप्रेजेंट इट बिफोर द जस्टिस इन दैट वर्ड, यानी ये वहाँ पर केवल जस्टिस कर दी थी किसी व्यक्ति के साथ कि वहाँ पर वह उसके कार्य कैसे, यानी उसने वर्क डन कैसे किया है। तो यही सब फेमस था स्कैटोलॉजी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन से रिलेटेड है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द सेकंड पार्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस यहीं देंगे, आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, केवल आप अगर इसको इतना लिख कर आएंगे तभी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट the students of Hindi medium and English medium both will be able to will be able to understand this and they also get succeed in his or her life। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर फिनिश करना चाहता हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।